एक 7 करोड़ रुपए का लैंड क्रूजर है, वो भी स्टोर पे जाए तो आटे का थैला उसके लिए भी वही प्राइस है, और एक बंदा साइकिल पे जा रहा है उसके लिए भी वही है. हाउ कैन यू जस्टिफाई दिस? You mentioned your dad in the start. आपको उनका वो वक्त याद है जब उन्होंने काम शुरू किया था? वो ट्रेडर थे. My father started this business about 5 decades ago, and he started from a very small and mediocre background. क्यों आपके आटे को लोग इतना पसंद करते हैं? We are one of the largest flour milling and wheat processors in Pakistan. हमें हमेशा एक डर रहता है कि ये जो रोटी का आटा है ना, ये पता नहीं सही है कि नहीं सही. Cakes and Bakes, Jalal Sons, Layers, and Tehzeeb, and these kind of bakeries. We are catering them. कैसे आप अपने कस्टमर को ये यकीन दिला सकते हैं कि नहीं, मेरा आटा उसी चक्की वाले आटा जैसा साफ, शफाफ और ठीक आटा है? अगर आपकी प्रोडक्ट प्राइम बिक रही है और आपका नाम लेके लोग ले रहे हैं, ब्रांड अगर आपका एस्टेब्लिश हो गया, तो आई थिंक यू आर द विनर ऑल द वे. किसान हमेशा नुकसान में रहता है, राइट और रॉन्ग? एक तो चीज ये है जो अब्बा से सीखी हमने, हाँ. वो ये है अपने काम पे जल्दी जाना. You read, you write, you work. How do you manage your family then? Work-life balance. गंदम में आके हमें क्यों हो जाता है कि जी के फार्मर को कुछ नहीं मिला? वो इस वजह से कि गवर्नमेंट हमसे एक वादा करते हैं कि हम आपसे खरीदेंगे और हम खरीदते नहीं है. बहुत सारे लोग माजिद बनना चाहेंगे, वो चाहेंगे कि उनके भी इतने बड़े बड़े एम्पायर हों, फ्लोर मिले हों, या उनके पास लिखने की ताकत आ जाए. ऐसे लड़कों के लिए, बच्चों के लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? 2 decades लगे मुझे इस बात के ऊपर कन्विंस कराने के ऊपर कि ये द होल सिस्टम ऑफ सब्सिडी, ये जितना है ये सब फ्रॉड है, ये गलत है, और इससे लोअर फॉर्मेशन ऑफ द फूड डिपार्टमेंट एंड द करप्ट मिलर्स. Hello everyone, in today's episode of Coffee with CEO, I'm having the top entrepreneur from one of the top flour mills of Pakistan, from House of Abdullah. That includes 6 to 7 companies having offices in Australia and Dubai. And by the way, the companies include Hejweri Mill, Sunny Flour Mill, Riaz Flour Mill, and so many more. So please welcome Majid Abdullah. How are you, Majid? Alhamdulillah. I'm fine. We are actually, if you have introduced myself, we are into the flour mill industry for the last 5 decades now. Oops, mashallah. And my father started this business about 5 decades ago, and he started from a very small and mediocre background, and he started from a trading house. We still own that trading house. It's in the heart of city of Lahore. So he started as a flour trader. Then we went into the manufacturing and the processing. So now we are one of the largest flour milling and wheat processors in Pakistan. We have a capacity of around 1200 tons a day across. That's huge. Across Pakistan, and we are into the food business, and apart from wheat, we are into imports as well of the grains and pulses from Australia, and trading over here and distribution here and we are into rice, and we into sugar as well. We are into trading of those products, and we have currently now entered into the market of corn milling. That's a new thing we have entered a few years ago. So if you say about the flour milling, we have the leading brand Sunny and Sun, and we have Hejweri. They are the 3 main brands of the Punjab, and we are catering the best bakeries and bread manufacturers in Punjab, like Cakes and Bakes, Jalal Sons, Layers, and Tehzeeb, and these kind of bakeries. We are catering them, and apart from the local bakeries, we are also providing flour to the multinationals as well. We are providing flour to McDonald's, to KFC, and we have been doing business at the Pizza Hut. So we've got different bakeries
bakeries who are we are providing them with all of these flour products over here. Currently, what the challenges we are facing at the moment is, since the government is getting out of this business and the private sector is not that much geared up, but we are fully prepared. And because if we are doing a business over here with the multinationals over here, we can do it overseas as well. So we're looking forward that if the government allows to export, so we are ready for it and we can do it over there. So there is nothing, if one man can do, another can also do. So all our products are very primary products and very high-end market products, and our products get a good price around Punjab and everywhere. So we are into expansion as well also, and since if the government is getting out of this business, so flour mills need to create their stocking capacity and storage capacity. Majid, you are catering to the top multinationals, you are catering to the top bakeries, and then you are providing the atta to the awam of Pakistan as well. क्यों आपके आटे को लोग इतना पसंद करते हैं? देखिए जी, इसमें there are two things. एक तो ये है कि the quality and the machines we have. We have got the best machinery in the world. There is a company in Switzerland by the name of Bühler. So they make the Rolls-Royce machines of the flour milling. So we have got their machines over here, and because of the good machinery, we invested once. Because if you buy a Rolls-Royce once, so you buy it once, so then it goes for the generations. So that's how it works. So we have got the good machines and the strategy. We have got the strategy that the consumer should be getting the best part. Consumer अगर आपका happy है, तो ये सब आपका काम चलता रहेगा. You don't have to worry about the government policies या गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट किस तरीके से जा रही है, वो एक डिफरेंट चीज़ हो जाती है. अगर आपकी प्रोडक्ट प्राइम बिक रही है और आपका नाम लेके लोग ले रहे हैं, ब्रांड अगर आपका एस्टेब्लिश हो गया, तो आई थिंक यू आर द विनर ऑल द वे. तो फिर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है. द कंज्यूमर डिमांड इज़ देयर. इफ द कंज्यूमर डिमांड इज़ देयर, तो फिर आपका. अब देखें, फ्यू ईयर्स अगो वी इंट्रोड्यूस्ड द होल व्हीट फ्लावर इन द मार्केट. जब यही काम कुछ लोगों ने अबाउट 3 decades ago किया, उस वक्त इतनी अवेयरनेस नहीं थी, हुआ नहीं. हमने जब किया तो अल्हम्दुलिल्लाह दैट्स अ सक्सेस. अब हम उन लोगों को कैटर कर रहे हैं जो ये समझते हैं कि हमें होल व्हीट ही खाना है और हमें जो है चक्की वाला आटा चाहिए. लेकिन वी वांट, इफ यू वांट टू हैव अ चक्की वाला आटा, ओके फाइन, दैट्स अवेलेबल, बट आपको यू शुड बी हैविंग अ प्रिपेयर्ड फ्रॉम अ हाइजीनिकली क्लीन व्हीट से आपको खाना चाहिए. माजिद, मैं एक माँ हूँ, मैं अपने घर में खाना खुद बनाती हूँ, और रोटी बनाना आपको पता है मैंने कितने सालों में परफेक्ट फूली हुई रोटी बनाना सीखी. मगर हमें हमेशा एक डर रहता है कि ये जो रोटी का आटा है ना, ये पता नहीं सही है कि नहीं सही. हम खुद पिसवा के लेंगे तो सही रहेगा, वो गंदुम लेके आओ, गंदुम मंगवाओ, उसके बाद फिर जाके चक्की पे पिसवाओ, ताकि मेरे बच्चे, मेरे शौहर, मेरी सास, मेरे अब्बू एक सही आटा खा सके. कैसे आप अपने कस्टमर को ये यकीन दिला सकते हैं कि नहीं, मेरा आटा उसी चक्की वाले आटा जैसा साफ, शफाफ और ठीक आटा है? देखिए जी, इसमें गंदम जो है उसकी क्लीनिंग अगर आप सही तरीके से करेंगे और उसकी हाइजीनिकली क्लीनिंग होगी, और इट शुड बी हैंडल्ड बाय द ह्यूमन हैंड्स, मशीनरी के ज़रिए अगर होगी, अगर ये काम हम करते रहेंगे, और मशीन, अगर आपका मशीन सही काम कर रही है और मशीनरी के ज़रिए से आप गंदम को साफ सफाई कर रहे हैं, ह्यूमन हैंड के साथ वो नहीं हो सकेगा, वो आपका नहीं हो सकता किसी सूरत में. हम लोग वैसे ये कहते हैं कि जी हमने घर में खुद गंदम जो है वो साफ़ की थी अपने हाथ से और फिर वो हमने किया. आप गंदम के दाने के अंदर जो एक लाइन होती है, उसमें अगर मिट्टी पाते हैं वो मशीन से नहीं निकल सकती उसके अलावा. सो ये लोग, हम लोग ये समझ रहे होते हैं कि शायद वो हाइजीनिकली क्लीन है. नो, इट्स नॉट. अब अच्छा, अब बात आ जाती है, एक होता है फ्लावर मिल का रूटीन वाला आटा होता है, और एक होता है हाई फाइबर, यानी कि उसमें से कुछ भी ना निकलो, दैट्स कॉल्ड होल व्हीट. तो होल व्हीट आटा जो है वो ऑब्वियसली न्यूट्रिशन वैल्यू उसी की है और वही खाना चाहिए हमें. लेकिन हमारी ट्रेंड बन गया है कि वी आर गोइंग इनटू द दूसरी हमारी बेकरी प्रोडक्ट्स के अंदर हमारा बहुत ज़्यादा आज का ट्रेंड हो गया हुआ है. पिज़्ज़ाज हैं, बर्गर्स हैं, सैंडविचेस हैं, बेशुमार आइटमें अब आ गई हुई हैं. तो बेकरी हमारे पिछले कुछ सालों के अंदर बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुई है, तो उस वजह से दैट्स अनदर मार्केट वो भी है. लेकिन जो घर में आपके खाने के लिए जो आटा है, वी थिंक हमारा आटा जो सेकंड टू नन है. Now let's come to your industry. So there are efficient mills and then there
देयर आर नॉन एफिशिएंट मिल्स, ये क्या चक्कर है? ये चक्कर है जी कि द इंडस्ट्री इज ओवर क्राउडेड एंड मशरूम ग्रोथ, एंड बिकॉज वो लगी इस वजह से कि दैट वाज अ कोटा सिस्टम बाय द गवर्नमेंट फॉर मेनी इयर्स, और उसकी वजह से ये मशरूम ग्रोथ हुई कि सब्सिडी जो है वो एम्बेजलमेंट होती थी, सब्सिडी बाय द इनएफिशिएंट फ्लोर मिल्स, जिसको मैं गोस्ट फ्लोर मिल्स भी कहता हूँ। सो दे वर प्रेजेंट ऑन द पेपर ओनली, दे वर नॉट रनिंग, सिर्फ एफिशिएंट मिल्स ही चलती थी और अब भी वही चल रही हैं, पहले भी वही चलती थी, अब भी वही चलती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वो जो इनएफिशिएंट मिल्स हैं, दे आर आउट ऑफ द बिजनेस नाउ। मिल है पर चलती नहीं थी, क्योंकि वो चलती नहीं थी जी, वो कोटा लेते थे, शटर बंद था, वो कोटा नहीं लेते थे, कोटा दे वर यूज्ड टू सेल द कोटा टू द एफिशिएंट फ्लावर मिल्स। तो चलती तो 500 टन गंदम का जो कोटा मिला वो आपको बेच देते थे जी, हमें बेच देते थे। नहीं जी, उन मिलों को बेचते थे जो मिलें चल रही होती थी। तो ये क्या फायदा बीच का, वो इसमें डिफरेंस था ना, नो दैट वाज अ सब्सिडी का डिफरेंस था। मार्केट प्राइस जो है वो महंगी थी और गवर्नमेंट की प्राइस सस्ती थी, इस वजह से जो है ना, मतलब घर बैठ के बिल कमा लिया इस वजह से। तभी तो हमारे यहाँ पे द इंडस्ट्री हैज ग्रोन टू द ग्रोथ ऑफ 1300 फ्लोवर मिल्स इन पाकिस्तान। उन्होंने काम ये किया जी कि उन्होंने मिल नहीं चलाई और उन्होंने उसका जो कोटा था वो एफिशिएंट मिल को सेल कर दिया इन ब्लैक में। उन्होंने सामान इधर से, क्योंकि वो तो गंदम भी तो वहीं से आप ही के पास आ गई ना, उन्होंने तो सिर्फ पेपर में गवर्नमेंट से गंदम लेते थे और वो उसको वो एम्बेजल, दिस इज कॉल्ड एम्बेजलमेंट ऑफ सब्सिडी। अब जो नया सिस्टम अब जो आया है वो इसमें है कि गवर्नमेंट क्योंकि इज गेटिंग आउट ऑफ द बिजनेस जो IMF की वजह से अब हो गया कि गवर्नमेंट कह रही है उनको कि आप निकल जाए इस काम के अंदर से। तो जब निकल रहे हैं तो आपको किसी ना किसी ने तो जगह लेनी है उसकी। Oh, so now the new system is in place. Yes. How? Great. किसान हमेशा नुकसान में रहता है, राइट और रॉन्ग? किसान जी नुकसान में इसलिए रहता है कि जब हमारे पास कंसिस्टेंट पॉलिसी नहीं होगी। अब आप देखिए जिस वक्त और फसलें हैं, राइस है, कॉर्न है, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, कॉटन है, जब उसकी फसल ऊपर नीचे हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है या कम हो जाती है, तो हमें तो नहीं पता कि हमें अल्लाह ने कितनी फसल देनी है। उस वक्त तो किसान इसके ऊपर ह्यू एंड क्राई नहीं करता कि फसल ज़्यादा हो गई है जी, मार्केट में ज़्यादा आ गई है, मैं क्या करूँ, रेट डाउन चला गया, जैसे आजकल आलूओं का गया हुआ, ठीक हो गया। फसल कम हो गई है तो सप्लाई कम हो गई तो रेट बढ़ जाएगा। ये तो डिमांड सप्लाई चलता रहेगा हमारे साथ, ये फ्री मार्केट इकोनॉमी के सारे नॉर्म्स हैं। गंदम में आके हमें क्यों हो जाता है कि जी कि फार्मर को कुछ नहीं मिला, वो इस वजह से कि गवर्नमेंट हमसे एक वादा करते हैं कि हम आपसे खरीदेंगे और हम खरीदते नहीं हैं। हम ये चाहते हैं कि आप उसको खुला छोड़ दें, आप सिस्टम ये बनाएं कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो इतना स्ट्रांग हो कि वो गवर्नमेंट की जगह ले सके। उसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा, जिस वक्त ये हो जाएगा। और राइस इंडस्ट्री की मिसाल हमारे सामने है, एन इंडस्ट्री जो 30 साल पहले एक स्क्रैच से शुरू हुई, आज वो $4 बिलियन एक्सपोर्ट के ऊपर खड़ी है। And that's a success benchmark for the floor industry now. Yes, and that's what we are saying कि आज वो इंडस्ट्री अगर खड़े हो सकती है, मैं कहना why can not we, हम भी हो सकते हैं, लेकिन आप हमें कंड्यूसिव और एक कंसिस्टेंट पॉलिसी चाहिए। हमें पॉलिसी ये चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर को आप ग्रो करने दें, प्राइवेट सेक्टर वो ये करेगा। जो बात आ जाती है व्हाट द गवर्नमेंट का जो फियर है, दैट इज फूड सिक्योरिटी फॉर द लो इनकम ग्रुप्स, यस वो बिल्कुल कैटर करना चाहिए। उसके लिए हमने इनको सजेस्ट किया गो फॉर द टारगेटेड सब्सिडी। टारगेटेड सब्सिडी क्या होती है, जैसे बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है या निगमान प्रोग्राम है, इसमें आप 500 रुपया 1000 रुपया उसके अकाउंट में डाल दें, वो अपनी मर्जी का ब्रांड जाके मार्केट से उतना डिस्काउंटेड प्राइस पे ले। So मतलब you are having the solution for the yes we are giving them solutions। हम ये चाहते हैं कि सब्सिडी अक्रॉस द बोर्ड नहीं होनी चाहिए। और पाकिस्तान का चावल पूरी दुनिया में माना जाता है। अब आपको मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि एक 7 करोड़ रुपए का लैंड क्रूजर है, वो भी स्टोर पे जाए तो आटे का थैला उसके लिए भी वही प्राइस है, और एक बंदा साइकिल पे जा रहा है उसके लिए भी वही है। हाउ कैन यू जस्टिफाई दिस थिंग? जो अफोर्ड कर सकता है, व्हाई टू गिव सब्सिडी? सब्सिडी इज कैन नॉट बी अक्रॉस द बोर्ड, इट हैज टू बी टारगेटेड वन। हमारा मुल्क गरीब मुल्क है, हमारे मुल्क में बिल्कुल गरीब है। एवरी कंट्री टेक्स केयर ऑफ इट्स पुअर पीपल, बिल्कुल होना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप उनको छोड़ दें, बिल्कुल नो, बट देयर आर वेज टू डू इट और गिव देम द सब्सिडी हु नीड इट एक्चुअली।
Not to everyone. नॉट टू एवरीवन, Please. नहीं होना चाहिए ना. अब डीएचए वालों को तो नहीं जरूरत ना सब्सिडी वाले आटे की. Now let's talk about Majid Abdullah. So now you write as well. Yes, I do write in different newspapers as well about my industry, about the food industry generally, and specifically the wheat sector, because we have to tell the government where the problem is. क्योंकि आप जब तक गवर्नमेंट को झंझोड़ेंगे नहीं, बताएंगे नहीं, तो कुछ बातें अब इट टुक अस अबाउट 2 decades लगे मुझे इस बात के ऊपर कन्विंस कराने के ऊपर कि ये द होल सिस्टम ऑफ सब्सिडी ये जितना है ये सब फ्रॉड है, ये गलत है, और इससे लोअर फॉर्मेशन ऑफ द फूड डिपार्टमेंट एंड द करप्ट मिलर्स इसका बेनिफिशियल. What is usually the time of the day when you write? Do you write daily? Do No. you write? I- It comes to you वही है होता No, है. जब whenever feel like there is something popping up in my mind, तो मैं start writing. उसको फिर मैं थोड़ा सा ठीक ठुक करता हूँ, so and then I contact the newspaper और फिर उसको देता हूँ. तो उसमें ये होता है approximately twice a month मेरा हो जाता है. Do you read books? A lot of it. Oh, A lot same of it. here. I got my personal library as well. The 2 books or 3 books that are very close to your heart. I always read which I read is one is Iqbal. I read him बहुत ज़्यादा, और दूसरा and the biographies of the famous people. Like 3 Well, biographies. that are biographies of the many famous people. I just finished a book on Khushwant Singh, Okay. and the Kuldeep Nayyar as well, Okay. and an autobiography of Sonia Gandhi. I did too. The red sari. Alright. The red sari. So, well, I always, because when you read about the lives of the famous people and the successful people and the people who have struggled in their lives, so you Learn a lot. learn a lot. You learn a lot. Okay, all right. 3 things you think a CEO should have. CEO should have at least, obviously, one of the basic things is that he should have very clear understanding of the industry which we are representing. Number 1. Number 2. You should have the controls over what it is getting in and getting out of your factory. Number 3. Right? You should be very good to your staff. Go. Do you take tough decisions? Yes, of course I take this. If I don't do, so हर काम आसानी से नहीं होता. You have to, I believe in one system that आपको, you have to run the system के लिए आपको system में वापस डालना है. You have to put back into the system. बहुत से काम हम लोग यहाँ भी अपने भी करते हैं. We have a very small program by the name of EYE, Educate Your Employee. Oh, beautiful, brilliant. What we do is that the workers in the mill, and we take care of their education, their school fees. That's the program what we do, and we just put a very tiny fraction of our production, and it is linked to the production. We generate the resources from our production and we give it to the. हमने कहा जब अपने बच्चों को पढ़ाएं, इस मुल्क को पढ़े लिखों की ज़रूरत है. अपने बच्चे को इसलिए किसी वर्कशॉप में ना डालें, किसी मैकेनिक के पास ना डालें, ये सोचकर कि जी मैं उसकी फीस नहीं दे सकता, फीस हम देंगे, अब बच्चे स्कूल भेजें बस. That's what made it. So approximately there are about 60-70 students at the moment जो हमारे इस वक्त जो एम्प्लॉयज के पढ़ रहे हैं. So we take care You of read, you write, you work. How do you manage your family then? Work-life balance. Well, I start early, very early. I'm in my office by 8:30, which every day, which people don't do most of the time, which I hear from my friends and everybody. Which हमारे नॉर्म है कि हमारे दुकानदार जो हैं 12-1 बजे भी जाते हैं दुकानों पे. I don't know how ये तो हमारा काम कैसे है. 8:30 on my office, and at 3:30 I'm off. On average day. I go back. I don't work after that. Excuse me. Yes. मैंने 8 घंटे देने हैं अपने काम को. उसके बाद I've got the controls everywhere. I've got the controls of my every office wherever it's running. So 8 hours, and then I So do that my means work. you are having a personal Yes, home obviously, life, proper family life, home सब life, कुछ है, family life. everything is there. But you see, you cannot be. आप एक काम करते जाएं बैठे हुए हैं, you need to pass on your powers to your delegate your powers to your staff as well. Rely on them. आप trust करें उन पे. Delegate. आप delegate your powers करें. You have to have good managers. आप उनको you monitor them.
2 hobbies of Majid Ali, other than reading now. Now you cannot mention it. Well, my one I'm swim a lot, Oh, okay. drink, and traveling. I Traveling. travel a lot. I have to travel for my business as well, but generally I do travel. 3 places you recommend others to visit, by hook or by crook. I think the one place which God made and और बना के उसने छोड़ दिया कि इसको रख दो बस, and that is New Zealand. Huh? New Zealand. Okay. आप एक दफा जरूर जाएं. Number 1. Number one, 2. that number 2 place is Australia. Obviously, it's a place to be. ठीक है ना. And the number 3 is Austria. You mentioned your dad in the start. आपको उनका वो वक्त याद है जब उन्होंने काम शुरू किया था? वो ट्रेडर थे. Yes, well, I was born in 71. So my father started business in 64. He came from India with nothing in his hand. He started as a very small floor trader. He started the business and he made all this empire by himself. Do you miss that time? Obviously, have I you miss learned it. that time? Have you learned something from that time? Yes, I've learned. एक तो चीज़ ये है जो अब्बा से सीखी हमने, वो ये है अपने काम पे जल्दी जाना. अरे वाह. अपने काम पे जल्दी जाना. सुबह बरकत वाला टाइम होता है, जल्दी जाओ काम पे और अपने काम को देखो जाके. उसके बाद ये है कि हर चीज़ के लिए एक उन्होंने रखा हुआ था कि भाई आपने ये इस काम के लिए ये टाइम रखना है, इस काम के लिए ये रखना है. पर उसके बाद ये नहीं करना. आफ्टर आवर्स जो है वो आपने काम को नहीं देखना, आपने अपनी फैमिली को टाइम देना. और एक चीज़ जो उन्होंने रखी है कि अपने स्टाफ का ख्याल रखना, चाहे जो मर्जी हो जाए, क्योंकि ही ट्रीटेड हिज मैनेजर्स लाइक हिज ओन सन्स एंड वी आल्सो डू द सेम. और आज ये एम्पायर खड़ा हो. जी हाँ, ये कंपेयर अल्हम्दुलिल्लाह. बहुत सारे लोग माजिद बनना चाहेंगे. वो चाहेंगे कि उनके भी इतने बड़े बड़े एम्पायर हों, फ्लोर मिले हों, या उनके पास लिखने की ताकत आ जाए. ऐसे लड़कों के लिए, बच्चों के लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? योर मैसेज ऑफ होप एंड ऑप्टिमिज्म फॉर द यूथ. यू हैव टू लिख इन द कैमरा. You have to be honest with yourself. First of all, which I go to certain institutions also. मैं जाके वहाँ पे बात भी करता हूँ बच्चों से, स्टूडेंट से करता हूँ. Whatever you plan in your life, always have an exit strategy. कोई भी काम आप करें, आपके पास उसको पहले अच्छी तरह प्लान कर लें. And when you do it, must have an exit strategy as well. जब आपके पास एक एग्जिट स्ट्रेटजी होगी कि मैंने निकलना इसमें से कैसे है, तो आप मार्केट आप खा सकेंगे दुनिया में. ये नहीं है कि मैं शुरू कर दूं बगैर प्लानिंग के और बाद में हाफ द वे जाके मैं सोचूं, क्योंकि हमारे यहाँ पे प्रोजेक्ट्स फेल इसलिए होते हैं कि दे आर हाफ बेक्ड. देयर इज नथिंग हाफ बेक्ड इन दिस वर्ल्ड. You have to be consistent in your life and conviction is very important. When you have a conviction कि मैंने ये काम करना है तो वो काम हो जाएगा, अगर आपने उसका पहले होमवर्क किया तो. So before we jump into something या कोई नई प्रोडक्ट हमने करनी होती है, हम वर्क करते हैं. We waited 3 years before we jumped into this whole wheat business. स्टडी किया उसको अच्छी तरीके से. then we hired an international company जो प्रोडक्ट एनालिसिस करती है, जिसने पिज़्ज़ा हट का पाकिस्तान में किया था कि ये सक्सेस होगा कि नहीं होगा. कि पिज़्ज़ा हट जिस वक्त आया पाकिस्तान में, तो उस वक्त पिज़्ज़ा जो है 300 रुपये का बिकता था. दो पिज़्ज़ा पार्लर थे पाकिस्तान में, एक लाहौर में, एक किंग्स एंड क्वींस होता था और एक जीनोज होता था. ठीक हो गया. जब वो लोग आए तो उन्होंने आगे कहा कि जी हम 600 रुपये का बेचेंगे और एम ए मालम रोड ब्लॉक हो जाएगी. एंड दे डिड इट. ये आज आप मुझे बताइए कि हम ये सोचते कि यहाँ पे टिम हॉर्टन आके यहाँ पे 800 रुपये का कॉफ़ी का कप बेच लेगा. बेचा ना उसने. ये चीज़ें होती हैं कि आप जिस वक्त मार्केट स्टडी को करके कोई चीज़ को लॉन्च करते हैं, हर चीज़ का एक टाइम होता है. आज से 10-20 साल पहले अगर मैं आपको कहता कि बेकरी का जो बिजनेस इस वक्त पाकिस्तान में है ये इस तरह से होगा, नहीं होना था.
अब डिफरेंट ही चीज़ है। Thank you so much, Majid. Thank you. It was lovely having you, and I wish House of Abdullah great success. Thank you, जी. Thank you. Not only in Pakistan but globally. I wish to see House of Abdullah rocking across Asia, Inshallah. Europe, and America. Inshallah. Inshallah in next decade. Inshallah. Thank you for coming to the show. Thank you.